اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ بات آج سے کئی سال پہلے کی ہے جب لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مبشر نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اللہ پر بہت یقین رکھتا تھا اور روزی کمانے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ مبشر کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر اللہ کا نام لیتا، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ اس کے ساتھ گھر میں اس کے بوڑھے والدین تھے جن کی خدمت وہ دل و جان سے کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ مبشر کی محنت، ایمانداری اور نرم مزاجی کی بہت تعریف کرتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ بادشاہ کا وزیر قریب کے علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ سن کر پورے گاؤں میں خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ مبشر کے بوڑھے والدین سخت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا ایک ہی سہارا ان کا بیٹا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور باپ کی زبان پر خاموش دعائیں۔ لیکن مبشر نے مسکرا کر کہا، ابا، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وہی ہمارا حافظ ہے۔ وزیر کی آمد سے ایک دن پہلے مبشر کے والد نے اسے خاموشی سے پاس بلایا۔ چہرے پر فکر اور آنکھوں میں راز چھپا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہارے نانا نے برسوں پہلے ایک خزانہ چھپایا تھا جس کے بارے میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مبشر حیران رہ گیا۔ والد نے آہستہ آواز میں کہا، وہ خزانہ دور پہاڑوں کے پیچھے ہے، مگر وہاں پہنچنا آسان نہیں، راستہ بہت خطرناک ہے۔ مبشر نے ادب سے پوچھا، ابا، آپ نے کبھی اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ والد گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، میں نے کوشش تو کی تھی، مگر راستے میں پہاڑوں کا طوفان اور خطرناک جانور آ گئے۔ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ خزانہ میری قسمت میں نہیں بلکہ تمہاری نصیب میں ہے۔ وزیر کے آنے سے ایک دن پہلے مبشر نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اس کا یقین تھا کہ شاید یہ موقع اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اس نے اپنے والدین کے قدم چومے، ان سے دعائیں لیں۔ والدہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ سکے اور تھوڑی سی روٹیاں رکھیں اور لرزتی آواز میں کہا، اللہ تمہارا حافظ ہو بیٹا۔ مبشر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ، میرا سفر تیرے حوالے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مبشر نے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا نقشہ تھا جو اس کے والد نے اسے دیا تھا۔ گاؤں سے نکلتے وقت اس نے پیچھے موڑ کر اپنے گاؤں کو دیکھا۔ جب وہ گاؤں کی سرحد پار کر رہا تھا، اس نے دور سے وزیر کا قافلہ آتا دیکھا۔ مبشر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بخیر و عافیت نکل آیا۔ راستے میں مبشر کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ درخت کے سائے تلے گھاس پر بیٹھا سادہ سا روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں نرمی۔ جب اس نے مبشر کو دیکھا تو مسکرا کر بولا، بیٹا، کہاں کا سفر ہے اکیلے؟ مبشر نے خزانے کا ذکر نہیں کیا اور کہا، بس یوں ہی سفر پر نکلا ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر مبشر کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹا، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو، مگر یاد رکھو، کبھی کبھی جو چیز ہم دور جا کر تلاش کرتے ہیں وہ ہمارے ہی پاس ہوتی ہے، اور کبھی جو چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہی تقدیر بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ مبشر نے بوڑھے کی بات سنی، مسکرا کے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے راستے پر چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کے اسے دو راستے ملے، ایک سیدھا اور آسان، دوسرا مشکل اور پہاڑی۔ اس نے نقشے پر نظر ڈالی جس میں پہاڑی راستہ دکھایا گیا تھا۔ مبشر نے بغیر خوف کے کہا، اللہ پر بھروسہ ہے، قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ مبشر نے اللہ کا نام لے کر پہاڑی راستے پر قدم رکھا۔ راستہ مشکل تھا مگر اس کا حوصلہ مضبوط تھا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا تو اس نے سوچا کہ رات گزارنی ہے، کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرنی ہوگی۔ تھوڑا چلنے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا جو وادی کے کنارے بسا تھا۔ اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ بولا، اللہ واقعی اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ گاؤں پہنچتے ہی مبشر نے دیکھا کہ وہاں ہلڑبڑ مچی ہوئی ہے۔ لوگ ایک کنویں کے ارد گرد جمع تھے اور شور مچا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ایک چھوٹا بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور سب اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مبشر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔
अपना सामान जमीन पर रखा और सीधा कुनवे में कूद गया। लोग हैरान रह गए कि एक अजनबी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। काफी कोशिशों के बाद मुबश्शिर ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़कर ऊपर पहुंचा दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे के माँ बाप की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। बच्चा गांव के सरदार का बेटा था। सरदार ने मुबश्शिर को गिले लगाया और कहा, बेटे तुमने आज हमारे लिए जान से कीमती चीज बचाई है। आज रात हमारे मेहमान बनो। कल सुबह तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत किया जाएगा। रात के खाने के बाद जब सब आराम कर रहे थे, सरदार ने मुबश्शिर को पास बुलाया और नरमी से पूछा, नौजवान तुम कहाँ जा रहे हो? मुबश्शिर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सच बताने का फैसला किया। इसने पूरे यकीन के साथ अपनी कहानी सुनाई और खजाने का जिक्र किया। सरदार खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, बेटा मैं इस खजाने के बारे में जानता हूं। मुबश्शिर हैरान रह गया। सरदार ने कहा, तुम्हारे नाना और मेरे वालिद गहरे दोस्त थे। वो खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एक अमानत है, एक पुरानी और कीमती किताब जिसमें इल्म के मोती छुपे हैं। सरदार ने आगे बताया, तुम्हारे नाना बहुत बड़े आलम थे। उन्हें डर था कि उनका इल्म गलत हाथों में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने वो किताब छुपा दी थी। वही इसे हासिल कर सकता है जिसके दिल में सच्चा ईमान और सब्र हो। मुबश्शिर बहुत मुतासिर हुआ। इसने पूछा, क्या अब जानते हैं वो किताब कहाँ है? सरदार ने कहा, हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। तुम्हें एक जंगल से गुजरना होगा, फिर एक गार तक पहुंचना होगा। अगली सुबह सरदार ने मुबश्शिर को एक नया नक्शा और कुछ खाने का सामान दिया। इसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जंगल तक जाएगा, फिर तुम्हें अकेले जाना होगा। मुबश्शिर और सरदार का बेटा जमील जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जमील ने पूछा, क्या तुम वाकई इस खजाने को हासिल करना चाहते हो? मुबश्शिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा यकीन है कि अल्लाह ने मुझे यही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। जमील जब जंगल के किनारे पहुंचा, इसने मुबश्शिर को एक तावीज दी और कहा, यह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो अल्लाह का नाम लेना और इस तावीज को छूना। मुबश्शिर ने शुक्रिया अदा किया और जंगल में कदम रखा, बेखबर के आगे कौन सी आजमाइशें इसका इंतजार कर रही है। जंगल घना और अंधेरा था। मुबश्शिर को हर कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ रहा था। सूरज की रोशनी बहुत कम थी, दरख्तों की शाखों से छन कर नीचे गिर रही थी। इसने नक्शा देखा और सीधा चलता रहा। अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर वो अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ता गया। दोपहर के वक्त मुबश्शिर एक झरने के पास रुका। अचानक एक भेड़िया सामने आ गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने तावीज को छुआ और अल्लाह का नाम लिया। हैरत की बात यह थी कि भेड़िया इसे देखता रहा और फिर सुकून से वहां से चला गया। शाम होने लगी थी। मुबश्शिर को रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए थी। इसने एक पुराना दरख्त देखा जिसके तने में खाली जगह थी। वो वहां छप गया। रात भर ड्रोनी आवाजें आती रहीं, लेकिन मुबश्शिर ने सूरज निकलने तक आंखें बंद रखी और सुकून से सो गया। सुबह हुई तो मुबश्शिर ने देखा कि वो दरख्त एक बूढ़े आदमी के घर के करीब था। बूढ़ा बाहर आया और बोला, बेटा, इस सुनसान जंगल में रात गुजारने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? मुबश्शिर ने मुस्करा कर कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाउमीद नहीं होता। बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, आओ बेटा नाश्ता करो। वो इसे अपने घर ले गया। खाने के बाद मुबश्शिर ने अपने सफर का मकसद बताया। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे नाना का दोस्त था। वो किताब बहुत कीमती है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। आगे एक रास्ते पर तुम्हें 3 मुसाफिर मिलेंगे, एक अमीर, एक आलम और एक फकीर। तीनों तुम्हारी मदद मांगेंगे, मगर तुम सिर्फ एक की मदद कर पाओगे। यही तुम्हारी किस्मत की परख होगी। मुबश्शिर ने पूछा, मैं कैसे फैसला करूं कि किसकी मदद करूं? बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अल्लाह खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मुबश्शिर ने शुक्रिया कहा और सफर जारी रखा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुबश्शिर ने देखा कि एक शाही कपड़े पहने अमीर आदमी रास्ते पर बैठा है। इसका घोड़ा जख्मी था। अमीर ने कहा, मुझे शहर तक पहुंचना है,
मेरे पास सोना है, तुम्हें इनाम दूंगा। मुबश्शिर आगे बढ़ ही रहा था कि दूसरी आवाज आई। एक बूढ़ा आलम भारी किताबें उठाए खड़ा था। इसने कहा, मुझे मदरसे तक पहुंचना है, मेरे पास इल्म है, तुम्हें सिखाऊंगा। अभी मुबश्शिर सोच ही रहा था कि तीसरी आवाज आई। एक बीमार फकीर जमीन पर गिरा हुआ था। इसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे पानी चाहिए, मैं मर रहा हूं। मुबश्शिर, सामने 3 रास्ते थे, दौलत, इल्म और इंसानियत के। मुबश्शिर ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यही मेरी तकदीर की असल आजमाइश है? मुबश्शिर ने कुछ देर सोचा, फिर फकीर की तरफ गया और अपनी पानी की मुश्क उसके होंठों से लगा दी। फकीर ने पानी पिया तो उसकी आंखों में नई जिंदगी की चमक आ गई। अमीर और आलम दोनों मायूस होकर वहां से चले गए। फकीर ने मुबश्शिर को दुआ दी। पानी पीने के बाद फकीर ने कहा, तुम्हारी नेकी रायगा नहीं जाएगी, तुमने दौलत और इल्म के बदले एक जान बचाई है। मुबश्शिर ने आजिज़ी से कहा, मैंने वही किया जो अल्लाह को पसंद था। फकीर मुस्कुरा कर बोला, तुम सही रास्ते पर हो बेटे। फकीर ने मुबश्शिर को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, जब तुम गार तक पहुंचो तो इसे जमीन पर रखना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मुबश्शिर ने शुक्रिया अदा किया और पत्थर संभाल लिया। चलते हुए इसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे अल्लाह हर कदम पर उसकी रहनुमाई कर रहा हो। जंगल से निकलते ही मुबश्शिर को दूर पहाड़ी इलाका नजर आया। नक्शे के मुताबिक इसे पहाड़ के पीछे जाना था जहां गार थी। रास्ता बहुत मुश्किल और फिसलन भरा था। शाम होने तक बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी थी। इसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी, पानी बहने लगा और जमीन धंसने लगी। अचानक इसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। इसने फौरन तावीज पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। तभी इसका हाथ एक दरख्त की जड़ से टकरा गया और वो किसी तरह खुद को संभाल पाया। बहुत मेहनत के बाद मुबश्शिर महफूज जगह पर पहुंचा। चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर नजर आया। वो वहां गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो एक नौजवान लड़की सामने थी। वो इसे देखकर हैरान रह गई। लड़की ने पूछा, कौन हो तुम? मुबश्शिर ने अपना तारुफ कराया और कहा कि वो रात के लिए थोड़ी देर के लिए पनाह चाहता है। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम बख्तावर है, मैं यहां अकेली रहती हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मुबश्शिर ये सुनकर हैरान हुआ कि वो इतनी सुनसान जगह पर अकेली कैसे रहती है। बख्तावर ने कहा, मेरे वालिद आलम थे, उन्होंने मुझे कुरान और इल्म सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन कोई आएगा जो एक खास किताब की तलाश में होगा। मुबश्शिर की आंखों में हैरत थी। बख्तावर ने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या वो शख्स तुम हो? मुबश्शिर ने पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? बख्तावर बोली, उनका नाम अब्द अल-उरीम था। ये नाम सुनते ही मुबश्शिर की आंखें नम हो गईं। यही नाम नक्शे पर लिखा था। इसने महसूस किया कि ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का लिखा हुआ है। बख्तावर ने इसे खाना दिया और कहा, कल सुबह मैं तुम्हें गार तक ले जाऊंगी। मेरे वालिद ने मुझे इसका रास्ता बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि गार में वही दाखिल हो सकता है जिसके दिल में सच्चाई और नियत की सफाई हो। मुबश्शिर ने दिल में कहा, अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। अगली सुबह बख्तावर मुबश्शिर को घर की तरफ ले गई। रास्ता पहाड़ी और मुश्किल था। चलते चलते बख्तावर ने कहा, मेरे अबू कहते थे कि हर इंसान की तकदीर उसके अमाल से जाड़ होती है। तुम्हारे अच्छे अमाल तुम्हें यहां तक ले आए हैं। मुबश्शिर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस किताब में क्या है? बख्तावर ने जवाब दिया, नहीं, मेरे वालिद कहते थे कि जब सही वक्त आएगा सही शख्स इसे खोलेगा। मेरे वालिद इसे नहीं खोल सके। उन्होंने कहा कि उनकी तकदीर में ये नहीं था। दोपहर तक वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। बख्तावर ने कहा, गार इस चट्टान के पीछे है, लेकिन एहतियात करना क्योंकि रास्ता खतरनाक है। वो चट्टान के गिर्द गए तो सामने गार का दरवाजा था, अंधेरा और डरावना। मुबश्शिर ने अपना हाथ जेब में डाला और फकीर ने दिया हुआ पत्थर निकाला। बख्तावर, ये पत्थर मुझे कैसे मिला? मुबश्शिर ने सारा वाकया सुनाया। बख्तावर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये अल्लाह की कुदरत है, वो अभी भी हमारी मदद कर रहे हैं।
मुबश्शिर हैरान रह गया। बख्तावर ने कहा, मेरे वालिद ने वफात से पहले कहा था कि मेरी रूह इसी रास्ते पर रहेगी जहां से किताब का हकदार गुजरेगा। मुबश्शिर ने गार में कदम रखा। अंधेरा था लेकिन बख्तावर ने मशल जला दी। वो अंदर गए तो देखा कि घर में कई रास्ते हैं। मुबश्शिर ने पत्थर जमीन पर रखा। पत्थर चमकने। फिक्र मत करो, मुझे यकीन है हम पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो घर के अंदर एक कमरे में पहुंचे जहां एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। कमरे में मशलें जल रही थीं। मुबश्शिर हैरान था, ये मशलें किसने जलाईं? बख्तावर ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है कि तुम सही वक्त पर आए हो। मुबश्शिर किताब की तरफ हाथ बढ़ा रहा था लेकिन किताब खोलने से पहले वो रुक गया। किताब पर एक अजीब ताल्लु था। ताला पर लिखा था कि यह सिर्फ वही खोल सकता है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पाया हो। मुबश्शिर सोच में पड़ गया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किया है? मुबश्शिर और बख्तावर हैरत से कफिल को देख रहे थे। मुबश्शिर ने सोचा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या हो सकता है? बख्तावर ने कहा, मेरे वालिद अक्सर कहते थे कि खजाना चांदी या सोना नहीं बल्कि कुछ और है। मुबश्शिर ने आंखें बंद की और सोचने लगा। अचानक मुबश्शिर को समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ईमान है। इसने कहते हुए कफिल को छुआ और बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा। हैरत की बात यह थी कि कफिल खिल गया। बख्तावर की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे अबू हमेशा कहते थे कि ईमान ही असल खजाना है। मुबश्शिर ने किताब खोली तो इसमें कुरान मजीद की तफसीर थी। तिब, रियाजी और कई उलूम का खजाना था। इन सफ़हात पर मुबश्शिर के नाना ने अपना सारा इल्म लिखा था। आखिरी सफ़हे पर लिखा था, मेरा खजाना उसके लिए है जिसे अल्लाह ने चुना है। मुबश्शिर पढ़ता रहा और इसे पता चला कि इस किताब में शिफा के नुस्खे, हिकमत के मोती और ऐसे राज थे जो आम लोगों की मदद कर सकते थे। आखिरी सफ़हे पर एक पैगाम था कि इस इल्म को फैलाना है मगर सिर्फ नेक लोगों में, ताकि यह गलत हाथों में ना जाए। अचानक जमीन हिलने लगी, पहाड़ गिरने लगे। मुबश्शिर ने किताब उठाई और बख्तावर का हाथ पकड़कर भागा। वो मुश्किल से बाहर निकले कि घर का दरवाजा बंद हो गया। मुबश्शिर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं, अब हमें घर वापस जाना होगा। रास्ते में बख्तावर ने मुबश्शिर से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो। मुबश्शिर ने कहा, नहीं, मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, उनकी खिदमत करनी है। बख्तावर मायूस हो गई। मुबश्शिर ने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। मुबश्शिर और बख्तावर को गांव पहुंचने में 1 हफ्ता लगा। जब वो पहुंचे तो मुबश्शिर हैरान रह गया। पूरा गांव बदल चुका था, वहां फौजी कैंप लगा हुआ था। एक बूढ़े आदमी ने बताया, बादशाह के वजीर ने सारे नौजवानों को फौज में भर्ती कर लिया। जो बच गए वो भाग निकले। मुबश्शिर के वालिदैन का घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें शहर ले जाया गया है। मुबश्शिर परेशान हो गया। बख्तावर ने कहा, फिक्रमंद मत हो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो शहर की तरफ निकल पड़े। किताब के इल्म को इस्तेमाल करते हुए, लोगों की मदद करते हुए शहर पहुंचकर पता चला कि वहां वबा फैल गई है। मुबश्शिर ने किताब से शिफा के नुस्खे निकाले और मरीजों का इलाज शुरू किया। इसकी शोहरत फैल गई। बादशाह के कानों तक खबर पहुंची। इसे बुलाया गया और उसने बादशाह के बीमार बेटे को भी ठीक किया। बादशाह खुश होकर मुबश्शिर से बोला, जो चाहो मांग लो। मुबश्शिर ने अपने वालिदैन को तलाश करने की दरख्वास्त की। जब वालिदैन मिले तो उन्होंने बताया कि वो मुबश्शिर को ढूंढ रहे थे। मुबश्शिर ने समझा कि तकदीर का लिखा मिलकर रहता है। इसने बख्तावर से निकाह किया और इल्म फैलाने लगा, ये समझते हुए कि असल खजाना ईमान, इल्म और अच्छे अमाल है। तकदीर का लिखा मिलकर रहता है लेकिन ये हमारे अमाल से जड़ा होता है। मुबश्शिर की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का असल खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान, इल्म और अच्छे अमाल है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। हमेशा याद रखो कि आजमाइशों के बाद ही इंसान अपनी मंजिल पाता है और जो तकदीर में लिखा होता है वो हमें जरूर मिलता है, लेकिन इसके लिए सब्र, मेहनत और नेक नीति जरूरी है। असल कामयाबी दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت مند رکھے، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت دے۔ آپ کا ہر ایک لائک اور سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی اور دلچسپ اسلامی کہانیاں لاتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہر مشکل سے بچائے اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔